میرے پاس ڈفرینٹ امپلائی ہے لائک محمد. ان امپلائیز کا ڈفرینٹ کے اندر بزنس یہاں پر بتا دیتے ہیں. ایک کمپلیٹ ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کے بعد اس کی اسمال سی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ اس کا ایک لے آؤٹ ایک شکل تھوڑی سی بن کر سامنے آ جائے. ناؤ یہ ہماری ڈیٹا بیس کریٹ ہو گئی. میں ریکمینڈ کروں گا کہ لک اپ کی کمانڈ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نیم کی ہیڈنگ پہ کھڑے رہ کر تمام ریکارڈ کو سارٹ ضرور کر لیں. تو سارٹ کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کے ٹیب میں جا رہے ہیں اور یہاں پر A to Z سارٹ کی کمانڈ کا استعمال کر رہے ہیں. سارٹ کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمام نیم الفابیٹیکل آرڈر میں کنورٹ ہو گئے. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ کو سرچ کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے, ہمیں کسی قسم کے پرابلم کا بعد میں جو ہے وہ فیس نہیں کرنے پڑتے. دین اب میں 2 سمپل ہیڈنگس یہاں پر ٹائپ کر رہا ہوں جس کے ذریعے ہم ریکارڈ کال کریں گے. لائک میں ایک سمپل انڈرسٹینڈیبل میسج لکھ رہا ہوں, ٹائپ اور دوسرا سوال ہے دا فیب فرسٹ ہم لکھتے ہیں جین کا ریزلٹ, جین ویلیو فار دس پرسن اس. 2 باکسز کریٹ کر لیتے ہیں جس پہ ہم ریزلٹ اپنے دکھائیں گے. نا ریکارڈ ہمیں چاہیے سب سے پہلے فار ایگزامپل عرفان کا اس سیل میں. تو اس سیل پر آنے کے بعد ہم فارمولا سٹارٹ کریں گے اور فارمولا ہے ایکولز ٹو لک اپ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ایکسل میں ہر فارمولا سٹارٹ ہوتا ہے ایکول کی سائن کے ساتھ, اس لیے ہم نے یہاں پر بھی ایکول کے ساتھ فارمولے کو سٹارٹ کیا, ایکول ٹو لک اپ. دین بریکٹ اوپن. سب سے پہلے کہتا ہے لک اپ کی ویلیو بتائیے. سینٹیکس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ونس اگر سینٹیکس ہمارے سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم آسانی سے اس پر کام کر سکیں گے. کہتا ہے کہ لک اپ کی ویلیو بتائیے, یعنی ریکارڈ کون سا سرچ کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ ریکارڈ یہ جو ہے جو بھی سیل میں لکھا گیا ہے اس کو سرچ کریں. دین کہتا ہے کاما لگا دیں, ہم نے کاما لگا دیا. کہتا ہے ریکارڈ کہاں سے سرچ کرے, تو ہم نے کہا کہ ریکارڈ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کرے. تو ہم نے انٹائر ڈیٹا بیس کی پراپرلی رینج کریٹ کر دی. دین اس کے بعد کہتا ہے کاما لگا دیں, ہم نے کاما لگایا اور کہتا ہے کہ کس سیل کالم میں جا کر بیسکلی ریکارڈ کے ریزلٹ کو سرچ کرے. تو ہم نے کہا کہ جین کے کالم میں جائے اور یہاں پر جو بھی ریکارڈ ہو اس کو لے آئے. فائنلی ہم نے انٹر کیا. آپ دیکھیں عرفان کے جو جنوری کا بزنس ہے وہ 30 روپیز کا ہے, تو وہ بزنس یہاں پر ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں امپلائی کا نام چینج کر دیتا ہوں, لائک میں نے عاطف یہاں پر ٹائپ کیا, تو آپ دیکھیں عاطف کا بزنس 90 روپیز ہے, وہ ہمیں دکھا رہا ہے. اسی طرح سے اگر میں ریکارڈ سرچ کرتا ہوں لائک سلیم, تو سلیم کا جو بزنس ہے جنوری کا وہ 40 روپیز ہے. اب اسی فارمولے کو ہم فیب اور مارچ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں, تو ہم سیم کوشچن دوبارہ لکھ دیتے ہیں, دا فیب ویلیو فار دس پرسس اینڈ دا مارچ ویلیو فار دس پرسس. سیل کی فارمیٹنگ کر لیتے ہیں اور سیم فارمولے کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. فارمولا ہے ایکولز ٹو لک اپ بریکٹ اوپن. کس ریکارڈ کو سرچ کرنا ہے, ہم نے کہا آپ اس سیل میں جو بھی ویلیو ہو اس ریکارڈ کو سرچ کرے. کاما کہاں سے سرچ کرے, ہم نے کہا کہ آپ اس ڈیٹا بیس میں سے سرچ کریں, لیکن اس دفعہ ڈیٹا بیس کے فیب کے کالم میں جائے اور ریکارڈ کو سرچ کریں. فائنلی ہم نے انٹر کیا. آپ دیکھیں سلیم کا جو فیب کا بزنس ہے وہ 130 روپیز ہے. سیم ہم مارچ کے اندر ریکارڈ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں سلیم کا, ایکولز ٹو لک اپ بریکٹ اوپن.
इस सेल में जो भी वैल्यू है उसको सर्च करें, इस डेटाबेस में जाके सर्च करें, लेकिन मार्च के कॉलम की वैल्यू को सर्च करें। फाइनली हमने इंटर किया, सलीम का मार्च का जो बिजनेस है वो 230 रुपीज़ है। अगर मैं यहाँ पर नेम को चेंज करता हूँ, लाइक मैंने जाहिद का नाम लिखा, तो जाहिद का जैन में बिजनेस 60 रुपीज़, फैब 150 और मार्च 250 रुपीज़ है। तो लुकअप के ज़रिए हम एक बड़ी जॉइंट डेटाबेस में से किसी भी रिकॉर्ड को अगर सर्च करना चाहें तो वो रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। आमतौर पे ये डिफरेंट सिनेरियो में यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर फला एम्प्लॉय ने लास्ट मंथ्स में कितना कमीशन जो है वो हासिल किया, या उसकी क्या वर्किंग डेज थे, या उसकी क्या प्रोग्रेस थी, ये तमाम चीज़ें बेसिकली हम लुकअप के फार्मूले के ज़रिए आसानी से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी हवाले से एक और फार्मूले को देखने जा रहे हैं जो कि एच लुकअप के नाम से पहचाना जाता है। एच लुकअप का फार्मूला बेसिकली रॉ के अंदर रिकॉर्ड को सर्च करने में हमारी मदद करता है, और इस फार्मूले के लिए भी हम एक छोटी सी डेटाबेस क्रिएट करके विद एग्जांपल इसे समझने की कोशिश करते हैं। एच लुकअप के फार्मूले को यूज करने के लिए मैं फर्स्ट क्वार्टर के बिजनेस को टाइप कर लेता हूँ, बल्कि रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, मैं जस्ट उसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। ये एक डेटाबेस मेरे पास मौजूद है, इसमें यहाँ ये हमारी रो नंबर 1 है, और इसी तरह से अब नेक्स्ट रोज ये सारी होंगी हमारी। एक सिंपल क्वेश्चन टाइप करके हम रिकॉर्ड को सर्च करने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास लाइक टाइप look for and withdraw needs to be picked out। ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर टाइप किया। अब हमें करना यह है कि सिंपल सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि फैब के रिकॉर्ड को सर्च करें, और फैब के मंथ में रॉ नंबर 5 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको बेसिकली यहाँ पर प्रिंट कर दें। तो फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वल्स टू लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कहता है लुकअप वैल्यू बताइए क्या चीज सर्च करनी है। हमने कहा आप फैब के कॉलम में जाइए और रिकॉर्ड को सर्च करें, कॉमा फैब का कॉलम डेटाबेस टेबल मांग रहा है। हमने कहा टेबल हमारा ये है। यहाँ पर ख्याल ये रखना है कि जब आप रेंज क्रिएट करेंगे तो उसमें हेडिंग्स यानी कॉलम के नाम भी रेंज में होने चाहिए। देन उसके बाद कॉमा, और हमें रॉ नंबर 4 चाहिए, कॉमा डेटा जो है वो कंडीशन में फॉल्स टाइप होगी। फाइनली इंटर। फैब के कॉलम के अंदर 4th रॉ में 120 की वैल्यू मौजूद है, ये देखें। इसी तरह से अगर मैं लाइक फैब की जगह मार्च लिखता हूँ तो मार्च के 4th रॉ में 220 रुपीज है, मार्च के 5th रॉ के अंदर लाइक 230 रुपीज है, जैन के अंदर लाइक 4th कॉलम में 30 रुपीज है, जैन की 6th रॉ के अंदर लाइक 50 रुपीज है। तो इस तरह से हम इंडिविजुअली रिकॉर्ड्स को सर्च कर सकते हैं और उनको डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एच लुकअप के फार्मूले को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हमारे पास डेटाबेस कुछ इसी तरह की हो, लेकिन अगर उसमें एम्प्लॉय के नाम भी मौजूद हो तो रिकॉर्ड को किस तरह से सर्च किया जाएगा, इस टेक्निक को हम एच लुकअप के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसी डेटाबेस को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक नई हेडिंग लाइक एम्प्लॉय नेम टाइप करके, एम्प्लॉय की नेम की लिस्ट हमारे पास पहले से मौजूद है, हम उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं।
अब सवाल ये है कि मुझे इस डेटाबेस में से रिकॉर्ड नेम और मंथ वाइज चाहिए। तो इसके लिए हम एक हेडिंग बना लेते हैं सिंपल सी, लाइक मैंने क्वेश्चन टाइप किया, टाइप लुक फॉर, और सेकंड है टाइप नेम लुक, और हम कहते हैं द रिजल्ट इज। अब हमें रिकॉर्ड सर्च करवाना है लाइक फैब का, और रिकॉर्ड चाहिए लाइक फन का। यहाँ पर दोनों कॉलम को हम लोग की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ना। अब हम इस पे फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, इक्वल्स टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। हमने कहा सबसे पहले आप मंथ में जाएं, तो हम इसे बताते हैं कॉमा मंथ का टेबल ये है, एंड देन कॉमा, और अब हम इसे बताते हैं कि मैच करें, क्या चीज मैच करे, नेम को, कॉमा। तो नेम का टेबल कहाँ है, हमने कहा कि नेम का टेबल सॉर्ट ऑफ कुछ ये है। देन इसी तरह से कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज +1 और कंडीशन फॉल्स। फाइनली हम इसको एंटर करते हैं। आप देखें फैब के मंथ में इरफान का जो बिजनेस होना चाहिए वो 130 है, तो वो हमें बता रहा है। इसी तरह से अगर मैं फैब की जगह लाइक मार्च लिखता हूँ, तो मार्च में इरफान का बिजनेस 230 रुपीज है, और अगर मैं जैन लिखता हूँ तो उसका बिजनेस 40 हमें दिखा रहा है। इसी तरह से अगर मैं जैन के अंदर वसीम का बिजनेस देखना चाहता हूँ, तो जैन में वसीम का बिजनेस 80, और अगर मैं फैब लिखूँ तो वो 170, और अगर मैं मार्च का बिजनेस देखना चाह रहा हूँ तो वो 270 रुपीज है। अगर मैं इसको मंथ वाइज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसी तरह से इनके तमाम रिकॉर्ड्स को मंथ वाइज भी हासिल कर सकता हूँ। तो ये एक बेस्ट कमांड जिसके जरिए हम एच लुकअप को और मैच को यूज करते हुए नेम के हवाले से एम्प्लॉय के नेम को सर्च करवा रहे हैं मंथ के अंदर, और उस मंथ में एम्प्लॉय का क्या कमीशन है या क्या बिजनेस है, स्टेटस है, उसके रिकॉर्ड को हम एग्जैक्टली एच लुकअप के जरिए नीचे देख पा रहे हैं।